بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ 26 جنوری گڑبڑ کے سلسلے میں کئی کسان لیڈرز کے خلاف مقدمہ، 2 یونینز احتجاج سے الگ ہو گئیں۔ گڑبڑ مرکزی حکومت کی سازش، کسان لیڈرز نے لگایا الزام، کہا لال قلعے پر جھنڈا لہرانے والا بی جے پی کا آدمی ہے۔ بائیڈن حکومت 2 ریاستی حل کی پابند، فلسطینیوں کی مالی مدد بحال کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ کی پالیسیوں کو الٹنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے خلاف امریکہ کو کیا خبردار، کہا ایران پر حملے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ امریکہ سعودی عرب کی لاجسٹک مدد بند کرے، ہتھیاروں کی سپلائی روکے، الحوثیوں نے کیا مطالبہ۔ موروکو میں اسرائیلی سفارت خانہ کھل گیا، سوڈان کے ساتھ سمجھوتے پر جلد دستخط ہوں گے۔ اسرائیل کے ناجائز قبضوں سے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، سیریا کے سفیر کا سیکیورٹی کونسل سے خطاب۔ طالبان لیڈر ملا برادر تہران پہنچے، ایران نے کہا آئی ایس کو روکنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران گڑبڑ کے سلسلے میں دہلی پولیس نے FIR میں کئی بڑے کسان لیڈرز کا نام لیا ہے۔ اس گڑبڑ کے دوران احتجاجیوں نے پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی تھیں اور کئی رکاوٹوں کو توڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ لال قلعے پر سکھوں کا مقدس جھنڈا لہرا دیا گیا تھا۔ اس گڑبڑ کے سلسلے میں پولیس نے 22 FIR درج کی، کم سے کم 6 کسان لیڈرز کا نام FIR میں شامل کیا گیا ہے۔ جن کسان لیڈرز کا نام FIR میں ہے ان میں سوراج ابھیان کے یوگیندر یادو بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ٹریکٹر ریلی کے دوران گڑبڑ میں کم سے کم 153 پولیس والے زخمی ہوئے، ان میں سے 2 ICU میں ہیں۔ پریڈ کے دوران دہلی کی بعض سڑکیں جنگ کا میدان بن گئی تھی۔ احتجاجیوں نے کئی گاڑیوں کو الٹ دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ ایک ٹریکٹر الٹنے کے واقعے میں ایک کسان ہلاک ہوا۔ وزارت داخلہ نے گڑبڑ کے بعد نیم فوجی دستوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ 15 سے 20 کمپنیوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہلی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہوم سیکرٹری اجے بھلا اور سینئر پولیس عہدیداروں اور وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے ساتھ اس میٹنگ میں غور کیا گیا۔
किसान लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि गड़बड़ के वाकयात एक साजिश का नतीजा है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त चौकसी अख्तियार की गई। किसान लीडर्स ने एहतजाजियों से अपील की कि वो अमन बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि मरकज़ के ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एजिटेशन की लड़ाई काफ़ी लंबी है। किसान लीडर्स ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत की। यूनियन लीडर्स ने गड़बड़ के वाकयात से दूरी अख्तियार की और कहा कि उनकी पुरअमन तहरीक को सबूताज करने के लिए एक साजिश की जा रही है। किसान लीडर्स के गोशे ने इल्जाम लगाया कि पंजाबी अदाकार और कारकुन दीप सिद्धू ने एहतजाजियों को गड़बड़ के लिए उकसाया और लाल किले पर सिख परचम लहराया। एक किसान लीडर ने इल्जाम लगाया कि दीप सिद्धू हुकूमत का आदमी है, हमें ये साजिश समझनी चाहिए। ये लोग किस तरह लाल किला पहुंचे, उन्हें क्यों आने दिया गया? लाल किले में गलत काम करने वाले सरदार नहीं बल्कि गद्दार हैं। इस दौरान सिंघू सरहद पर किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई जिसमें ये बात दोहराई गई कि गड़बड़ साजिश का नतीजा है। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। सर, कुछ लोगों को आपने भी चिन्हित किया जो आपके साथ? हाँ, बिल्कुल चिन्हित करा। यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेडिंग तोड़े। उन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर, कुछ टेलीविजन आपके ओहदेदार गड़बड़ के वाकयात में दीप सिद्धू के रोल की तहकीकात कर रहे हैं। दीप सिद्धू ने फेसबुक पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि एहतजाजियों ने कौमी परचम नहीं निकाला बल्कि अलामती एहतजाज के तौर पर निशान साहब लहराया। उन्होंने कहा कि ये कोई सोचा समझा काम नहीं था बल्कि अचानक हो गया। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि दीप सिद्धू सिख नहीं है बल्कि वो बीजेपी का कारकुन है। ये किसानों की तहरीक है और रहेगी। बाज लोगों को फौरी चले जाना चाहिए। बैरिकेड्स तोड़ने वाले इस तहरीक का हिस्सा नहीं हो सकते। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह ने कहा कि लाल किले पर जो कुछ हुआ वो दीप सिद्धू का किया धरा है। पुलिस ने क्यों उसे नहीं रोका? वो बीजेपी का करीबी आदमी है। लोग पूरे पुरअमन तरीके ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 0.1 ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में किसान लीडर्स दर्शनपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, राजेवाल, बूटा सिंह, जोगेंद्र सिंह और राकेश टिकैत का नाम लिया। दिल्ली पुलिस मोबाइल रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा ले रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि एक पुरअमन तहरीक को बदनाम करने की साजिश की गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत से कहा कि वो फौरी ज़रई कानून वापस ले। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बातचीत के दरवाजे अभी खुले हैं। हुकूमत और किसान यूनियंस के दरमियान अब तक बातचीत के कई दौर हो चुके हैं जो नाकाम रहे हैं, क्योंकि किसान चाहते हैं कि ज़रई कानून सिरे से बर्खास्त कर दिए जाए, लेकिन हुकूमत क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करना चाहती है और दोनों फरीक अपने अपने रुख पर डटे हुए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को गड़बड़ के वाकयात के बारे में ब्रीफिंग दी और रिपोर्ट पेश की। उत्तराखंड में भी चौकसी अख्तियार की गई। 2 किसान यूनियंस ने 26 जनवरी की गड़बड़ के बाद एहतजाज से अलग होने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के सदर डॉक्टर भानु ने कहा कि कल जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई है और वो 58 दिन से जारी एहतजाज को ख़त्म कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कौमी कन्वीनर वीएम सिंह ने भी ऐसा ही बयान जारी किया।
اب لیے چلتے ہیں آپ کو مڈل ایسٹ۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے مڈل ایسٹ کے تعلق سے اپنی پالیسیاں بدلنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بائیڈن حکومت نے یونائیٹڈ نیشنز میں یقین دلایا ہے کہ امریکہ 2 ریاستی حل کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کی مالی مدد بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بائیڈن حکومت پچھلی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے کئی فیصلوں کو الٹ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستی حل کے سوا کسی دوسرے حل کو اس کا بدل نہیں سمجھتی۔ یو این سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر رچرڈ لوئس نے بتایا کہ بائیڈن کی مڈل ایسٹ پالیسی میں 2 ریاستی حل کو اہمیت حاصل ہوگی، جس کے تحت اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سیکی نے کہا کہ صدر کا ابھی خیال ہے کہ 2 ریاستی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ امریکی سفیر نے سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں کہا کہ بائیڈن حکومت فلسطینی مدد بحال کرے گی اور سفارتی مشنز دوبارہ کھولے گی جنہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بائیڈن حکومت دوسرے ملکوں سے بھی درخواست کرے گی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ان مقصدوں کو آگے بڑھانے کے لیے بائیڈن حکومت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں اسرائیل کے حق میں سرگرمی سے کام کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلم شفٹ کیا اور اسے اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کیا، بلکہ اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کروائے اور فلسطینیوں کو حاشیے پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے ایک نام نہاد ڈیل آف دی سینچری بھی بنائی تھی جس میں فلسطینیوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ فلسطینی سمجھوتے کو رد کر چکے ہیں۔ اس سمجھوتے کے بعد فلسطینیوں نے کہا تھا کہ امریکہ ایک غیر جانبدار مصالحت کار کی حیثیت سے اپنا اعتبار کھو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بھی سخت پابندیاں لگائی تھیں۔ اسرائیل کے ایک فوجی جنرل نے وارننگ دی ہے کہ ایران کے خلاف حملے کے منصوبوں پر غور کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل میں پھر سے شامل ہونا غلط ہوگا اور اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اسرائیل کے لیفٹیننٹ جنرل ایوی کوچاوی نے تیل ابیب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حالیہ مہینوں میں اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں دوبارہ شروع کی ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملے کے منصوبوں پر غور شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں نے اسرائیلی فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ پہلے سے موجود منصوبے کے علاوہ دوسرے آپریشنل منصوبے بھی تیار کرے۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ کے نئے صدر جوزف بائیڈن نیوکلیئر ڈیل میں واپس ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد مڈل ایسٹ میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی فوجی واقعات اور حملوں سے بھی حالات خراب ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائی اور ایران کی معیشت کو چکنا چور کرنے کے لیے سخت پابندیاں لگائیں۔ اسرائیل نے موروکو میں اپنے سفارت خانے کی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ موروکو میں اسرائیل کے سفیر بھی پہنچ گئے ہیں اور جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان معمول کی سفارتی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ حال ہی میں اسرائیل اور موروکو نے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ پچھلے سال 4 عرب ملکوں UAE، بحرین، موروکو اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان اگلے 3 مہینوں میں واشنگٹن میں تعلقات قائم کرنے کے تعلق سے سفارتی ڈیل پر دستخط ہوں گے۔ سوڈان کے عہدیداروں نے یا اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس منسٹر نے کہا کہ پیر کو ایک ڈیلیگیشن سوڈان میں اترا اور اس ڈیل کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے وقت لگے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ دیکھیں گے سورو گانگولی کو ایک بار پھر سینے میں تکلیف پر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم،
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन से बात करें। 26 जनवरी गड़बड़ के सिलसिले में कई किसान लीडर्स के खिलाफ मुकदमा, 2 यूनियंस एहतजाज से अलग हो गईं। गड़बड़ मरकजी हुकूमत की साजिश, किसान लीडर्स ने लगाया इल्जाम, कहा लाल किले पर झंडा लहराने वाला बीजेपी का आदमी है। बाइडेन हुकूमत 2 रियासती हल की पाबंद, फलस्तीनियों की माली मदद बहाल करने का फैसला, ट्रंप की पॉलिसियों को उलटने का सिलसिला जारी। इसराइल ने न्यूक्लियर डील बहाल करने के खिलाफ अमेरिका को किया खबरदार, कहा ईरान पर हमले के मंसूबे बना रहे हैं। अमेरिका सऊदी अरब की लॉजिस्टिक मदद बंद करे, हथियारों की सप्लाई रोके, अलहूसियों ने किया मुतालबा। मोरक्को में इस्राएली सफारत खाना खुल गया, सूडान के साथ समझौते पर जल्द दस्तखत होंगे। इस्राएल के नाजायज कब्जों से मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी खतरे में है, सीरिया के सफीर का सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। तालिबान लीडर मुल्ला बिरादर तेहरान पहुंचे, ईरान ने कहा आईएस को रोकने के लिए अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जाए। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि आज ईरान को पहले से ज्यादा यकीन है कि उसके खिलाफ अमेरिका की मौशी जंग नाकाम हो गई है और दुनिया न्यूक्लियर डील के तहत अपनी जिम्मेदारियां फिर से अदा करने से इत्तेफाक कर रही है। कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि इस साल ईरानी इनकलाब की 42वीं सालगिरह पहले से अलग होगी, जिसकी वजह यह है कि अब वो लोग नहीं हैं जिन्होंने ईरानी इनकलाब को दहशतगर्दी और मौशी जंग के जरिए झुकाने की कोशिश की। उनका इशारा साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। इसराइली फौजों के चीफ ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहा जाता है, हर लिहाज से इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल है। ईरान ने 2015 में चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ इस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत ईरान के खिलाफ आलमी पाबंदियां हटाई गई थीं और ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को कम किया था।
सीरिया के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि अरब इलाकों पर इसराइल के नाजायज कब्जों से मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम खतरे में है। सीरियन ओहदेदार ने इसराइल के नाजायज कब्जों को ख़त्म कराने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रोल की नाकामी पर तनकीद की। सिक्योरिटी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए सीरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा और यूनाइटेड नेशंस में मुस्तक़िल नुमाइंदे बशार जाफरी ने कहा कि पिछले 54 साल से सिक्योरिटी काउंसिल ने इसराइल को अरब ज़मीनों पर नाजायज कब्जों और वहाँ के लोगों के ताल्लुक़ से दुश्मनी की कार्रवाइयों को रोकने और उसे जवाबदेह बनाने के लिए कुछ नहीं किया है। जाफरी ने कहा कि इसराइल के ओहदेदार आलमी कानून और करारदादों की इज्जत नहीं करते। उन्होंने कहा कि सीरिया की ज़मीन पर मुसलसल जारहियत की हरकतें इस बात का सबूत है कि इसराइल किस तरह आलमी समझौतों और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाता है। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि अमेरिका को सऊदी इत्तेहाद की लॉजिस्टिक मदद और हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगानी चाहिए। अलहूसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक रुकन ने कहा कि बाइडेन हुकूमत को चाहिए कि वो यमन के खिलाफ जारहियत के लिए सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों पर पाबंदियां लगाए। यमन की हादी हुकूमत ने कहा है कि वह अलहूसियों को दहशतगर्द करार देने के डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के फैसले को उलटने के लिए बाइडेन के कदम को रोकने की कोशिश करेगी। सबा न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए हादी हुकूमत के वज़ीर आज़म माइन अब्दुल मलिक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को भी इन कोशिशों में साथ देना चाहिए। सऊदी अरब का ख्याल है कि अलहूसियों के खिलाफ कार्रवाई को उलटने का फैसला ईरान को मजबूत करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया किसी भी ऐसे इदारे को तस्लीम नहीं करेगा जो जंग या हथियारों के जरिए अफगानिस्तान में इक़्तिदार हासिल करेगा। अली शमखानी ने तालिबान के एक लीडर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। तालिबान के अहम लीडर और मुज़ाकरातकार मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने तेहरान का दौरा शुरू किया। शमखानी ने इस मौके पर कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अमन और सलामती नहीं चाहता, बल्कि उसकी पॉलिसी यह है कि खून खराबा होता रहे और लंबे अरसे तक अफगान ग्रुप्स के दरमियान लड़ाइयां चलती रही। मुल्ला बिरादर ने ईरान की दावत पर यह दौरा किया। इस मीटिंग के दौरान ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने कहा कि अमेरिका बातचीत का फरेब कर रहा है। शमखानी ने कहा कि ईरान अफगानिस्तान की सलामती, खासतौर पर सरहदी सूबों में अमन को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। उन्होंने आईसिस जैसे ग्रुपों की सरगर्मियों को रोकने के लिए तालिबान से ख्वाहिश की कि वो अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। इस मौके पर मुल्ला बिरादर ने शमखानी को अमन के अमल के बारे में बताया। तालिबान लीडर्स को तमाम कबीलों, नस्ली ग्रुपों और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की सूरतगरी में अहम किरदार अदा करना चाहिए, ऐसा शमखानी और तालिबान लीडर के दरमियान इत्तेफाक हुआ। बात कोविड की, इंडिया के एक्टिव कोविड केसों में कमी आ रही है। फिलहाल मुल्क में 1,76,500 एक्टिव केसेस हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,690 कोविड केस सामने आए। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक इंडिया में 20,19,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट दिया गया है। इस दौरान ICMR ने कहा है कि कोविड-19 की नई शक्ल के खिलाफ कोवैक्सीन असरदार है। BCCI के सदर और साबिक इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली को सीने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत पर एक मरतबा फिर हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। तकरीबन 1 महीना पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। उनके दिल में 3 ब्लॉक्स पाए गए थे। उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उनके कई टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार
माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी, हैदराबाद। 26 जनवरी गड़बड़ के सिलसिले में कई किसान लीडर्स के खिलाफ मुकदमा, 2 यूनियंस एहतजाज से अलग हो गईं। गड़बड़ मरकजी हुकूमत की साजिश, किसान लीडर्स ने लगाया इल्जाम, कहा लाल किले पर झंडा लहराने वाला बीजेपी का आदमी है। बाइडेन हुकूमत 2 रियासती हल की पाबंद, फलस्तीनियों की माली मदद बहाल करने का फैसला, ट्रंप की पॉलिसियों को उलटने का सिलसिला जारी। इसराइल ने न्यूक्लियर डील बहाल करने के खिलाफ अमेरिका को किया खबरदार, कहा ईरान पर हमले के मंसूबे बना रहे हैं। अमेरिका सऊदी अरब की लॉजिस्टिक मदद बंद करे, हथियारों की सप्लाई रोके, अल-हुसियों ने किया मुतालबा। मोरक्को में इस्राएली सफारत खाना खुल गया, सूडान के साथ समझौते पर जल्द दस्तखत होंगे। इसराइल के नाजायज कब्जों से मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी खतरे में है, सीरिया के सफीर का सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। तालिबान लीडर मुल्ला बिरादर तेहरान पहुंचे, ईरान ने कहा आईएस को रोकने के लिए अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जाए। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।